Hi friends, in today's session we'll start with this ionization enthalpy that is denoted by delta HI, that is ionization enthalpy. So definition हमने आगे भी already discuss कर चुके हैं. It is defined as the energy required to remove an electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom in its ground state. Once again, it is defined as the energy of remove an electron from this outermost shell of an isolated gaseous atom in its ground state. किस हिसाब से डिस्कस करेंगे? मान लीजिए दिस इज वन स्पीशीज X plus you apply some amount of energy. That energy is known as ionization enthalpy. Minimum energy required to remove one electron from this isolated gaseous species is known as ionization enthalpy. Means यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, so obviously one electron release is converted into cation, that is X plus one electron. So delta HI means ionization enthalpy is always measured in terms of kilojoule per mole or joule per mole, and you apply some amount of energy. That's why delta HI is always positive. Delta HI is always positive. So you can see this simple diagram. Here in case we have one species. This is loosely bound or outermost shell, valence shell electron. So minimum energy required to remove this electron, that is called as ionization enthalpy. यहाँ से you apply some amount of energy, then this electron is released. So it's converted into cationic part, that is plus one charge plus one electron is removed from it. So basically जो हमने discussion किया X2 corresponding X plus, delta HI is always positive. So ionization enthalpy is always positive. So let's take one or two example, तो ये concept और ज़्यादा clear हो जाएगा. We'll start with magnesium. Magnesium is 282. By applying some amount of energy, first one electron removed from this 2 and converted into Mg plus, that is 281, one electron is released. So that is first ionization enthalpy. Let's take example 100 kilojoule होगी शायद. मैं arbitrarily बता रहा हूँ, this is not confirm, तो रट्टा मात मार लीजिएगा कि 100 kilojoule. So next, now still there is one electron in valence shell. So Mg plus 1, उसमें से फिर से मैं कुछ एनर्जी अप्लाई करूंगा और ये एक इलेक्ट्रॉन खींच लूंगा एंड कन्वर्टेड इनटू Mg plus 2, वन इलेक्ट्रॉन रिलीज. तो यहाँ पे भी मुझे 100 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ेगी. क्यों? क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे 100 किलो जूल देनी पड़ी, तो ऑब्वियसली सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भी मुझे 100 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ेगी. यस और नो? नो. क्यों नो? जस्ट बिकॉज आप देखिए पिक्चरल डायग्राम. दिस इज मैग्नीशियम स्पीशीज नॉर्मल. उसके न्यूक्लियस के अंदर टोटल 12 प्रोटॉन होंगे. आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है. बेसिकली होते तो 12 इलेक्ट्रॉन ही है. नाउ आई अप्लाई सम अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड ये एक इलेक्ट्रॉन को मैंने निकाल दिया. सो ये किस में कन्वर्ट हो गया? Mg प्लस में. सो Mg प्लस के अंदर होगा क्या? 12 प्रोटॉन रहेंगे बट इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? 11. Yes or no? So basically पहले 12 proton is to 12 electron is there. तो ratio proton to electron is 1:1. But now when you apply some amount of energy and remove one electron, now it's converted into 12 proton and 11 electron. Now force of attraction to this nucleus to outermost shell is increases. तो जो पहले 100 किलो जूल पर मोल एनर्जी दी थी, अगर सेम एनर्जी दूसरी बार दोगे ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा. Why? Because force of attraction between proton electron now increases. ये बढ़ चुका है, तो इसीलिए आपको 100 से कम ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. I'll arbitrarily write 170 किलो जूल पर मोल. कम से कम 1.5 मीन्स टाइम्स बढ़ जाएगा, जस्ट बिकॉज अट्रैक्शन थोड़ा बढ़ चुका है. सो आर्बिट्रली इट इज इंक्रीजेस. द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी से सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज इंक्रीजेस. सो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पे आर्बिट्रली लिख लेते हैं 170 किलो जूल पर मोल होगा. ऐसा ही एक और एग्जांपल देखते हैं. एल्यूमिनियम की बात करते हैं. एल्यूमिनियम इनिशियली इट्स 283. By applying some amount of energy, it's converted into Al plus 1 electron.
तो आर्बिट्रली मैं लिख रहा हूं मुझे चाहिए 120 किलो जूल। नाउ सेकेंड, Al प्लस से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है एंड कन्वर्ट इनटू Al प्लस 2। तो क्या सेम 120 किलो जूल एनर्जी चाहिए होगी? नहीं, 120 से कम ज्यादा चाहिए होगी। तो आई राइट इट डाउन, अप्रोक्सीमेटली 180 किलो जूल पर मोल जितनी एनर्जी चाहिए होगी। नेक्स्ट, Al प्लस 2 से Al प्लस 3 में जा रहे हैं तो एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है। नाउ थर्ड इज रियली वेरी टफ। Why? बिकॉज फर्स्ट केस के अंदर मेरे पास थे 13 प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो अब बच गए हैं 12 इलेक्ट्रॉन एंड ऑफ दिस। अब यहाँ पे एंड ऑफ दिस क्या हो चुका है? 13 प्रोटॉन हैज इट इज, बट बचे कितने? 11 इलेक्ट्रॉन। सो नाउ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ चुका है, तो मुझे 180 से तो बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी उससे भी ज्यादा होगी, अप्रोक्सीमेटली आई राइट इट डाउन 320 किलो जूल पर मोल जितनी एनर्जी दूंगा तब जाके ये लास्ट इलेक्ट्रॉन निकलेगा। सो कंक्लूजन क्या है फ्रेंड्स? कंक्लूजन इज सिंपल, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी से सेकेंड एंड सेकेंड से थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज इंक्रीजेस। सी हियर इन केस पिक्चरल डायग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। सो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए देखिए एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है, तो दिस इज द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट से सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यहां से दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकल चुका है, नाउ इट हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल एंड फाइनली थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी मींस दिस। अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो यहां से यहां जाने के लिए साइज छोटी हो जाएगी और यहां से यहां और भी साइज छोटी होती जाएगी। व्हाई? बिकॉज कैटायन इंक्रीजेस, साइज डिक्रीजेस। सो आप देखिए यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। नेक्स्ट in line that is called factor affecting on ionization enthalpy. Factor affecting on ionization enthalpy. First is atomic size. Now atomic size increases, ionization enthalpy decreases. Second, nuclear charge. Ionization enthalpy increases with the nuclear charge increases. And last is shielding effect. Screening effect increases, shielding effect decreases, ionization enthalpy decreases. एक और कंडीशंस, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज इंक्रीजेस। तो हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड, हाफ फिल्ड हमने एग्जांपल पढ़ा था लास्ट सेशन में, दैट इज क्रोमियम D5 था, एंड लास्ट हमने पढ़ा था कॉपर, दैट इज D10 था। इन बोथ द केसेस आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज इंक्रीजेस। सो अभी जो हमने ऊपर के 3 पॉइंट पढ़े, दैट इज विच आर द फैक्टर अफेक्टिंग ऑन आयोनाइजेशन एंथैल्पी, अब ये टाइम आ चुका है देखने का किस हिसाब से। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या था? एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। सो यहाँ पे एक बेस्ट एग्जांपल ले रहे हैं, दिस इज द फिगर, दिस इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। सो पीरियोडिक टेबल में ये सबसे टॉप में है, ये नीचे है। तो व्हेन यू कम अप टू द डाउन, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, मोलर मास इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस, फाइन। सो लिथियम न्यूक्लियस से बहुत फर्स्ट पास में होगा, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन मुझे लिथियम में से निकालना है और एक इलेक्ट्रॉन सीजियम में से निकालना है, तो कहां से मैं इजीली निकाल सकूंगा? सबसे पहले आयोनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल। सो लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, सीजियम से किस में से निकाल सकूंगा मैं? ऑब्वियसली सीजियम में से। व्हाई? बिकॉज सीजियम इज फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड लिथियम इज रियली वेरी क्लोज टू दिस न्यूक्लियस. So it is really very difficult to remove one electron from lithium, and due to this, down to the group, ionization enthalpy is always decreases. दूसरा हमने पढ़ा न्यूक्लियर चार्ज increases, ionization enthalpy increases. अब न्यूक्लियर चार्ज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां पे सबसे ज्यादा होगा? लिथियम में ज्यादा होगा, उससे थोड़ा सा कम सोडियम में होगा. अब मैं बात कर रहा हूं सोडियम एंड सीजियम की, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसके पास होगा? बॉन्डिंग टू दिस न्यूक्लियस किसके साथ ज्यादा होगा? सोडियम के साथ. सीजियम इज फार अवे फ्रॉम दिस न्यूक्लियस, and due to this, if you want to remove one electron from here and one electron from here, cesium can easily remove one electron from outermost shell. Sodium cannot release one electron as compared to the cesium. Sodium easily निकाल ही सकता है, but as compared to cesium, it is really very difficult.
So that is all about your second part, nuclear charge. थर्ड हमने पढ़ा शील्डिंग इफेक्ट. अब देखिए उसके बाजू में क्या लिखा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, शील्डिंग डिक्रीजेस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस. अब स्क्रीन का मतलब क्या होगा एंड शील्डिंग का मतलब, शील्ड आप सभी को पता है कि यू आर शील्डेड बाय, if you are staying with joint family, you are shielded by so many people. Shield means protections, attractions, safety. Means पापा मम्मी है, ग्रैंडपा ग्रैंडमा है, और शायद अंकल आंटी भी अगर आपके साथ घर पे रह रहे हैं, तो you are shielded by so many species. Fine, at your place. So here in case this is your nucleus. nucleus से जो सबसे नजदीक होगा वो ज्यादा shielded होगा और जो दूर होगा वो लेस शील्डेड होगा. मान लीजिए अगर आपका एल्डर ब्रदर और सिस्टर स्टेइंग और गोइंग स्टडी फॉर यूएस है, तो दे आर फार अवे फ्रॉम द होम, तो शील्डिंग होगा? शील्डिंग नहीं होगा. शील्डिंग इज रियली वेरी लेस. व्हाई? बिकॉज खाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर फोन पे ही बात हो सकते हैं. यू कैन नॉट गो इमीडिएटली. यू कैन गो डेफिनेटली, बट यू कैन नॉट गो इमीडिएटली इफ समथिंग गोज रॉन्ग. But if you are staying at home, you are more shielded. स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या होगा? स्क्रीनिंग इफेक्ट मीन्स न्यूक्लियस से सीजियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना है तो बहुत सारी ऑर्बिटल स्क्रीन करके पहुंचना पड़ेगा. दिस इज जस्ट लाइक इफ यू आर सिटिंग इन अ ह्यूज एग्जामिनेशन हॉल. अगर आप सेकेंड लास्ट बेंच पे बैठे हो और अप्रोक्सीमेटली रो के अंदर 15 या 17 बेंचेस है, तो सर को सप्लीमेंट्री देने के लिए बहुत सारे बेंचेस क्लियर करके आपके पास पहुंचना पड़ेगा. मैं स्क्रीनिंग इज मोर. इफ यू आर सिटिंग ऑन फर्स्ट और सेकंड बेंच, यू आर रियली वेरी क्लोज टू दिस टीचर. मीन्स जस्ट लाइक वेरी क्लोज टू दिस टीचर. तो आप कभी भी कुछ भी कॉपी नहीं कर सकते हो. व्हाई? बिकॉज यू आर क्लोज टू दिस न्यूक्लियस. सो हियर इन केस स्क्रीनिंग का मतलब क्या हुआ, इन शील्डिंग का मतलब क्या हुआ? शील्डिंग का मतलब इफ यू आर रियली वेरी क्लोज टू दिस न्यूक्लियस, you are more shielded. If you are really very far from this nucleus, you are less shielded. Less shielded means more screening, बहुत ज्यादा ऑर्बिटल स्क्रीन करके आपके पास पहुंचना पड़ेगा. And due to this, ionization enthalpy decreases. So this is all about your ionization enthalpy के factor. एक बार पढ़ लेते हैं. Among the period, ionization enthalpy from left to right is always increases. Next, down in atomic radius and increase the nuclear charge. Why? Because atomic radius decreases and effective nuclear charge increases. अब पीरियड के अंदर किस हिसाब से होगा, अब ग्रुप के अंदर देख लेते हैं. डाउन टू दिस ग्रुप ionization enthalpy is always decreases just because atomic radius increases, distance from nucleus is increases, size increases, force of attraction decreases. Due to this, ionization enthalpy increases. Fine. So ionization enthalpy decreases. So basically lithium, sodium, potassium, rubidium and cesium. Lithium is smaller in size, very close to this nucleus, require tremendous amount of enthalpy. बहुत ज़्यादा enthalpy देनी पड़ेगी. While in case of cesium, cesium is far away from this nucleus, very larger in size, so you require very less amount of enthalpy. So first group has very least ionization enthalpy, while in case 18th group has very highest ionization enthalpy. Reason क्या है? First group element means lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium. They always want to release one electron. They are always hungry to release one electron. While in case of group 18, that is fulfill electronic configuration, वो कभी भी एक इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं चाहेंगे. So that's why you require a tremendous amount of energy to remove one electron. So this is the graph. Graph clearly shows that. आप देखिए सारे पिक के ऊपर नोबल गैस है. हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेडन. अब ये पे डिक्रीज हो रहा है. देखिए क्यों? क्योंकि डाउन टू द ग्रुप साइज इंक्रीजेस. सो जितनी एंथैल्पी नियोन के लिए चाहिए उससे कम क्रिप्टॉन के लिए चाहिए, सॉरी आर्गन के लिए चाहिए, उससे कम क्रिप्टॉन और उससे कम जेनॉन के लिए चाहिए. सेम केस हैपन विथ लिथियम. लिथियम अब देखिए लिथियम देन नियोन ओवर हियर, देन यू हैव अ सोडियम, then potassium, then rubidium, then cesium. So this is all about your diagram. Now two exceptional case in ionization enthalpy, beryllium and boron.
सो बेरिलियम एंड बोरोन के केस का डिस्कशन किस हिसाब से करना है, सबसे पहले एक ग्राफ देख लेते हैं एंड देन वी डिस्कस दिस। हमने डिस्कशन में पढ़ा लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज इंक्रीजेस। तो यहाँ लिथियम बेरिलियम, अब देखिए बेरिलियम से बोरोन डाउन हो रहा है, अब क्यों डाउन हो रहा है वो हमें समझना है। देन कार्बन इंक्रीज इज वेरी गुड, नाइट्रोजन इंक्रीज इज वेरी गुड। अब देखिए नाइट्रोजन से ऑक्सीजन डिक्रीज हो रहा है फिर से, अब ये क्यों हो रहा है पता नहीं है। ऑक्सीजन से फ्लोरीन इंक्रीजेस, फ्लोरीन से नियोन इंक्रीजेस, बेसिकली इट कंटिन्यूअसली इंक्रीज होना चाहिए, बट ये जो दो स्टेप आए ये क्यों आए उसका रीजन हमें डिस्कशन करना है, व्हाई। सो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, दैट इज बेरिलियम 1s2 2s2, so this is nothing but helium core and 2s2. Likewise this is boron, boron is nothing but 1s2 2s2 2p1, this is nothing but helium core 2s2 and 2p1. Now अब दोनों में देखिए, अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना है और एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना है, ऑब्वियसली दिस इज इन पेयर, और दूसरा ये s ऑर्बिटल में है, s रियली वेरी क्लोज टू दिस न्यूक्लियस, व्हाइल इन केस दिस इज p और p में भी एक लौता अकेला इलेक्ट्रॉन है, तो नाउ दिस इलेक्ट्रॉन कैन रिमूव वेरी इजीली एज कंपेयर टू दिस बेरिलियम। सो दो बेरिलियम के बाद बोरोन आता है, देन आफ्टर दिस इलेक्ट्रॉन कैन रिलीज वेरी इजीली। नेक्स्ट ऑक्सीजन टू नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन की केस नाइट्रोजन इज 1s2 2s2 2p3, दिस इज हीलियम कोर 2s and 2p3। अब p3 आया, p3 means half fill electronic configuration, half fill electronic configuration means extra stability, extra stability means you require more amount of energy to remove this electron, while in case oxygen is 1s2 2s2 2p4, this is helium core 2s and 4th ये है। जो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल लेते हैं तो दे अचीव नियरेस्ट नोबल मीन्स हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में पहुंच जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी हाफ फिल्ड है, और जो अगर ये इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो दे अचीव ए हाफ फिल्ड। सो हियर इन केस जस्ट बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड this required really very high amount of energy as compared to this, means oxygen required less ionization enthalpy as compared to this nitrogen just because of extra stability of nitrogen half fill electronic configuration. So this is all about your today's session. एक बार फिर से ग्राफ देख लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं, नेक्स्ट सेशन में और आगे बढ़ेंगे। सो दिस इज योर कंक्लूजन। देखिए क्यों बेरिलियम से बोरोन नीचे आया, जस्ट बिकॉज वन इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम 2p1, हियर इन केस 2s में से एक इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं निकलेगा, 2p में से निकल जाएगा। लाइकवाइज नाइट्रोजन इज p3 मींस हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन 4 मींस 4 इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन अगर आप निकाल देते हो तो p3 में पहुंच जाएगा विच बिकम्स अ हाफ फिल्ड, एंड ड्यू टू दिस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलेगा। सो ऑक्सीजन रिक्वायर लेस। So this is all about your today's session. Next session में हम और आगे बढ़ेंगे।